بسم الله الرحمن الرحیم۔ لال بچیا کی جسے ذبح کر کے یہودی مسجد اقصی کو گرائیں گے۔ دوستوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں نے اس لال رنگ کی بچیا کو حاصل کر لیا ہے کہ جسے وہ پچھلے 2000 سال سے تلاش کر رہے تھے، اور اس گائے کی بچیا کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس لال رنگ کی بچیا کی عمر جیسے ہی 3 سال ہو جائے تو اسے فوراً مسجد اقصی کے قریب ایک پتھر پر ذبح کر دیا جائے، اور پھر ایک ذبح کی ہوئی بچیا کو جلا کر اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے۔ تبھی یہودی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ پچھلی کچھ ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہودی مسجد اقصی کو گرانے کی پوری پلاننگ کر چکے ہیں، کیونکہ مسجد اقصی ہی کو گرا کر وہاں وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اور ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا تھرڈ ٹیمپل بن کر تیار ہو گیا اور ہم نے اس کی بنیادوں میں لال رنگ کی بچیا ذبح کر کے اس کی راکھ ڈال دی تو اسی دن ہمارا اصلی مسیحا دجال آ جائے گا اور پھر ہم ساری دنیا پر راج کریں گے۔ تو دوستوں، یہودیوں کو وہ لال رنگ کی 5 بچیا پچھلے سال 2022 ستمبر میں مل چکی ہے کہ جن کے ذبح ہونے میں اب صرف 3 سے 4 مہینے ہی بچے ہیں، کیونکہ 3 سے 4 مہینے کے بعد وہ سبھی بچیاں پورے 3 سال کی ہو جائیں گی، اور ان کی مقدس کتابوں کے مطابق جیسے ہی وہ سبھی 3 سال کی ہوں تو انہیں ذبح کر کے ان کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے۔ دوستوں، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت فلسطین میں چل رہی جنگ کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل ہی کا ہے، کیونکہ اس جنگ کو اسرائیل ہی نے جان بوجھ کر چھیڑا ہے۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1980 میں مشہور فلسطینی لیڈر یاسر العرفات کی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل نے حماس پارٹی کو بڑھاوا دیا، اور اپنے طور پر حماس پارٹی کو اتنا زیادہ فنڈ دیا کہ آخر یاسر العرفات کی پارٹی کمزور پڑی، اور پھر انہی اسرائیلیوں نے یاسر العرفات کو راتوں رات ایسا شہید کیا کہ کسی کو آج تک کچھ خبر نہیں۔ اور گزرے کچھ دنوں میں جو حماس نے اسرائیل پر زبردست حملہ کیا تو اس میں بھی اسرائیل ہی کی ایک بڑی سازش تھی، کیونکہ دوستوں، آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کی سبھی خفیہ ایجنسیوں میں سب سے زیادہ طاقتور ایجنسی اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے۔ یہ خفیہ ایجنسی ایسی ہے کہ اپنا دیش تو چھوڑو، وہ پوری دنیا پر ہر وقت نظر رکھتی ہے کہ آخر اس وقت دنیا کے کس دیش کے کس شہر میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ کچھ ریسرچ کے مطابق 7 اکتوبر کو موساد نے خود ہی حماس کو موقع دیا تھا کہ وہ اسرائیل پر آ کر حملہ کریں، تاکہ اسرائیل کو موقع مل سکے کہ وہ معصوم فلسطینیوں کا خون بہا کر پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں کر لیں، اور پھر مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں، اور اپنی تلاش کی گئی لال بچیا کو ذبح کر کے اپنے مسیحا دجال کو اس دنیا میں آنے کا راستہ آسان کریں۔ دوستوں، یہ سب سننے میں آپ سب کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن آپ تھوڑی ہی ریسرچ کریں اور یہودی مذہب کی مقدس کتابوں کو جا کر پڑھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آخر اس وقت اسرائیلی یہودی فلسطین کے اندر ایسے حالات کیوں بنا رہے ہیں۔
इसके पीछे उनका क्या टारगेट है, और आखिर अमेरिका जो कि ईसाई धर्म को फॉलो करता है, वो इस वक्त यहूदियों का कदम कदम पर साथ क्यों दे रहा है, जबकि अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो यहूदी व ईसाई हमेशा से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन चले आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे तो आपको इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही मिलेगा कि यहूदी व ईसाई एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं कि जिसकी मानो वो सारी दुनिया पर राज करेंगे। उनका मानना है कि जिस दिन भी हमने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां अपना हैकले सुलेमानी बना लिया, तो हमारा मसीहा आकर सारी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम कर देगा। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन में मौजूद यरूशलेम शहर दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों यानी यहूदी, ईसाई व मुसलमानों के लिए किस कदर अहम है। खास तौर पर मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का व मदीना के बाद सबसे मुकद्दस जगह है। ईसाई इस जगह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इसी जगह पर पैदाइश हुई थी, और यहूदी इस जगह से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आज से 2000 साल पहले इस मस्जिद अक्सा की जगह उनका हैकले सुलेमानी बना हुआ था, कि जो उनके लिए वही अहमियत रखता है जैसे हम लोगों के लिए मक्का व मदीना। लेकिन 2000 साल पहले जब टाइटस नामी ईसाई बादशाह ने यरूशलेम पर हमला बोला, तो यहूदियों की असल इबादत गाह हैकले सुलेमानी को पूरी तरह तबाह व बर्बाद कर दिया और लाखों यहूदियों को कत्ल करके उस ईसाई बादशाह ने यरूशलेम पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन यहूदियों की इबादत गाह है हैकले सुलेमानी की एक दीवार आज भी मौजूद है, कि जिसे यहूदी पकड़कर आज भी रो रो कर अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआएं मांगते हैं कि ऐ हमारे खुदा, जल्दी से दुनिया में हमारे उस मसीहा को भेज दे, ताकि पूरी दुनिया पर फिर से एक बार हमारी हुकूमत कायम हो सके। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक यरूशलेम शहर पर ईसाइयों का कब्जा रहा, और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह पर अपने तौर पर कुछ इबादतें किया करते थे। लेकिन जब इस्लामी सरहदें बढ़ने लगी और बड़े बड़े मुल्क इस्लामी हुकूमत में शामिल होने लगे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के दौरे हुकूमत में मशहूर सहाबी हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हा ने जाकर फिलिस्तीन को भी फतह कर लिया, और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के हुक्म पर मस्जिद अक्सा में जो दूसरे बादशाहों के जरिए जो कुछ तोड़ फोड़ हुई थी उसे सही किया गया, और मस्जिद अक्सा को एक नई शक्ल देकर वहां नमाज का सिलसिला कायम कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब यहूदी किताबों के मुताबिक उनका असली मसीहा दज्जाल तभी आएगा जब इस मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ तीसरी बार हैकले सुलेमानी को तामीर किया जाए। वो लाल रंग की 5 बछियां ज़िबह करके उसकी राख हैकले सुलेमानी की बुनियादों में रखें। लेकिन उससे पहले यहूदियों के लिए शर्त ये है कि दोस्तों, क्या आपको अंदाजा है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं बचा, सिर्फ व सिर्फ 3 से 4 महीने की बात है, क्योंकि यहूदियों ने उन 5 लाल रंग की बछियों को तलाश करके अपना हैकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और इस वक्त फिलिस्तीन में चल रहे हालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब इजराइल अमेरिका के सपोर्ट से अपनी इस जंग को रोकने वाला नहीं, बल्कि
जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए इजराइल पिछले कुछ सालों से बराबर अपने पास ऐसे हथियार जमा कर रहा था और खुद की इकोनॉमी को मजबूत से मजबूत बनाता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो जंग शुरू होने वाली है कि जिसका जिक्र सभी मजहबी किताबों में मिलता है कि कयामत से पहले एक ऐसी अजीम जंग होगी कि जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो जंग ऐसी होगी कि अगर एक बाप के 100 लड़के होंगे तो उनमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे, और इस जंग के बाद दज्जाल और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम वे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर वही सब कुछ होगा कि जिसका हदीस की किताबों में जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, अब जरूरत है कि हम मुसलमान अपने अंदर कुछ बेदारी पैदा करें। यहूदी व ईसाई तो अपने मजहब के सिलसिले में हर तरह से चौकन्ना है और उन्हें अच्छी तरह यकीन है कि हमारी किताबों में जो बातें लिखी हैं वो सब कुछ होकर के रहेगा, जबकि उनकी किताबों को तो पूरी तरह बदल दिया गया है। उनमें अक्सर झूठी बातें शामिल कर दी गई हैं, लेकिन हमारा कुरान तो आज तक सही सलामत महफूज है। हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस अपनी असली हालत पर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमानों को दुनिया के हालात की कोई खबर ही नहीं। यहूदी व ईसाई मुसलमानों को खत्म करके अपने मसीहा दज्जाल को लाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, और हम मुसलमान हैं कि हमें नाच गानों से ही फुर्सत नहीं। बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि इस वक्त हमारे इलाकों में अक्सर मुस्लिम नौजवानों को खबर ही नहीं कि फिलिस्तीन में हमारे भाइयों पर कैसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बल्कि इन हालात के वक्त क्रिकेट मैच की खबरें बड़े उरूज पर हैं। इसलिए देखने में आता है कि नौजवानों को क्रिकेट के बारे में तो एक एक पल की खबर है, लेकिन फिलिस्तीन में होने वाले हालात की कुछ खबर नहीं। समझ नहीं आता कि आखिर मुसलमान के अंदर ये नहुसत कब निकलेगी और कब वो अपनी जिंदगी के मकसद को समझेंगे। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को पढ़ने व समझने की तौफीक अता फरमाए और यहूदी व ईसाइयों और दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें।